बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके तारीख़ी मोड़ पर, जो न सिर्फ़ एक दो तरफ़ा हमें रवाबित बल्कि अब जो ख़ित्ते की जो जियो इकनॉमिक है उसकी सिमत पर असरअंदाज भी होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तवील अरसे के बाद काज़ाकिस्तान की जो एक आला सतही सरकारी दौरा पाकिस्तान है उसके दौरान ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, AI, IT और इसके साथ साथ जो डिजिटल तरक्की समेत मुख्तलिफ 37 अहम मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि दोनों ममालिक की जो मुश्तरका हिकमत अमली है उसके ज़रिए हम इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के अहदाफ को हासिल कर सकते हैं। और नाज़रीन, इस दौरे की जो एक अलग सिग्निफिकेंस है वो ये है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान बिलतरतीब साउथ और जो सेंट्रल एशिया है उसके जियो इकनॉमिक हब तस्वुर किए जाते हैं। आज इस्लामाबाद में मुनक़दा पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सदर कासिम जोमारत तोकोयफ के शिरकत हुई है और इन ताल्लुकात को जो है स्ट्रेटिक शराकतदारी में जो है तब्दील करने के हवाले से भी बात हुई है। साथ साथ जो बाहमी तिजारत को आइंदा 2 बरस में $1 अरब तक बढ़ाने, बिजनेस टू बिजनेस और जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको फ़रोग देने पर भी इत्तफाक किया गया है। यकीनन आज की जो डिबेट होगी इसी पर मुनसर होगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पेशरफ्त है, ये खित्ते की जो मईशत है, तवानाई राहदारियों, डिजिटल ताउन और मुस्तकबिल की जो जियो इकनॉमिक सियासत है उसको किस डायरेक्शन पर लेकर जाएगी। डिबेट करने से पहले मैं चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खिताब किया था आज बिजनेस फोरम से, पहले वो सुनते हैं। Excellencies, ladies and gentlemen, members of Kazakhstan business delegation, Pakistani entrepreneurs, Deputy Prime Minister Ishaq Dar, Deputy Prime Minister of Kazakhstan Sarik Sumangrin, Honorable members of Kazakhstan delegation, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Your Excellency, I am extremely delighted to welcome my dear brother, President Qasim Tokayev, to this wonderful event where outstanding businessmen from Kazakhstan and Pakistan are participating, and this will augur wonderfully well for our future. This morning we had extensive discussions as to how to further enhance our trade in agriculture, IT, minerals, and connectivity, which is central to this entire discussion. Many Central Asian countries being landlocked, Pakistan offers Your Excellency outlet through Gwadar and Karachi, and NLC, which is a very efficient state-owned company of Pakistan, is fully geared to transport goods from Central Asian countries to our ports, and then, of course, from Karachi and Gwadar to Kazakhstan and other Central Asian countries. And this is a great opportunity, as Your Excellency is deeply interested in developing at a very rapid pace rail and road connection through Turkmenistan, Afghanistan, and then to Chaman. Pakistan is fully committed to participate and contribute meaningfully in undertaking this project, as it will be a game changer not only between our two countries, but this will change the landscape economically
entire region. Your Excellency, as we discussed this morning, that despite our fraternal relations and deep bonds of friendship, our trade volume, as I speak, hovers around $250 million, which is not a fair reflection of our brotherly relations and, of course, infinite potentials the two countries have from Allah Almighty in various walks of industry, agriculture and mining, IT, pharmaceutical, engineering, manufacturing, and all other important areas of commerce and trade. Your Excellency, today we agreed to strive our best to achieve a target of $1 billion trade in the next 2 years. And let us resolve today that we will do everything within our domain to achieve this target even earlier. Ladies and gentlemen, I'm very grateful to my dear brother for inviting me to visit our brotherly country, Kazakhstan, within this year. And I accept this invitation with a sense of great happiness and gratitude. We have decided to constitute a working group between the two countries, which will be tasked to undertake a 5 years program as to how to enhance our commerce, trade and bilateral investment portfolios. And my dear brother President Tokayev accepted this proposal immediately. And from our side, we have appointed Dr. Ehsan Iqbal as head of our Pakistan side, and President Qasim Tokayev has appointed Deputy Prime Minister Sarek Zumangaren from Kazakhstan side. And I think this will be a very important decision which will lead to a wonderful 5 years roadmap, and hopefully we will sign this document during my visit to your great country, Mr. President. Ladies and gentlemen, this is the time we should accept the challenge and convert this very friendly relation into very friendly commercial business relations. Time and tide wait for none. So let's accept the challenge and move forward with a sense of achievement, and I can assure you, sky would be the limit. Excellency, I would like to mention one of those MOUs out of 37 signed today, which will again become harbinger of our bilateral prosperity and progress, and that is development of Kazakhstan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan rail route, and cooperation between our ports to connect our regions and optimize our respective transit potential. Finally, I would like to convey my sincere message to Pakistani business community sitting here in this hall and those who are not here, that my very dear brother, President Qasim Tokayev, is visiting Pakistan after 23 years. The last Kazakh president, Mr. Nur Sultan, was here in 2004.
And this shows my brother's commitment and his love for the people of Pakistan. And I think this is where this is where we are extremely happy and deeply grateful. He is a very accomplished politician. He has served on various positions, important positions, in the last many decades, not only in Kazakhstan, serving its people, but globally, United Nations. He has been in China, Russia, and carries vast experience at his disposal. Today is the time that we should benefit from his experience, from his vision, and make today as a great day in our history, and commit today that we will do everything within our domain to convert our friendly ties into the most going commercial business ties around the globe. Pakistan-Kazakhstan friendship, long live Zindabad. जी नाज़रीन, अब अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं मैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, आप IR एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ नईम सिद्दीकी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी मौजूद हैं। साथ साथ हमें आरिफ ज़फ़र मंसूरी साहब तज़कियाकार, उन्होंने ज्वाइन किया, और फ़रूख पताफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगी। मुनव्वर साहब, एक तवील अरसे के बाद हम इस तरह का काज़ाकिस्तान का दौरा देख रहे हैं सर, और आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि डिप्लोमेसी कॉन्टेक्स्ट में आप इस दौरे की सिग्निफिकेंस किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? पहले तो बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने शो में मदऊ किया। देखें, इसको हम 3 लेवल्स पे देख सकते हैं। पहला तो सिस्टमिक लेवल है, जहाँ पे बहुत ही गहरी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, और यहाँ तक कि मार्क कार्ने जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो कहते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये रप्चर हो गया है और वी नीड टू हैव अनदर ऑर्डर। और यही बात उन्होंने चाइना के दौरे के ऊपर कही कि गालिबन वी आर मूविंग टूवर्ड्स मेकिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दूसरा, खित्ते की सतह पे देख सकते हैं जहाँ पे नए रीजनल ऑर्डर्स मुरतब हो रहे हैं, बिकॉज एक स्पेस क्रिएट हुआ है, और इन रीजनल ऑर्डर्स की ज़रूरत इसलिए है कि खित्ते में स्टेबिलिटी हो। और यही मैं कहता हूँ कि 2S पॉलिसी दोनों ममालिक के दरमियान में है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ये वो कॉमन गोल है जिसके बायस आप देखते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स वो भी मुरतब दी जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, ईरान के दरमियान में हो, या बेलारूस, रशिया और 6 जो ममालिक हैं सेंट्रल एशिया के, उनके दरमियान में हो। तो स्टेबिलिटी मैटर्स अ लॉट। तीसरा, बायलैटरल लेवल पे पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें 3 C's आते हैं: कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन विद ऑल मेजर पावर्स, और कोऑपरेशन विद स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, और कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। तो साउथ एशिया को अगर कोई कनेक्ट कर सकता है सेंट्रल एशिया से, वेस्ट एशिया से, तो वो पाकिस्तान है। और यही वजह है कि परमीन साहिनी हो या कोई और एनालिस्ट, उनका मुद्दा यही है कि अगर जो 3 लैंड मासेस हैं, यूरेशिया, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया, उसमें अगर कोई पिवोट है तो दैट इज़ पाकिस्तान। तो फ्रॉम दैट वेरी पर्सपेक्टिव ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। आखिरी जुमला में ये कहूँगा कि जब से सेंट्रल एशिया आज़ाद हुआ, ये 6 ममालिक आज़ाद हुए 1991 में, पाकिस्तान उन पहले ममालिक में से था जिसने इनको तस्लीम किया, बिकॉज हमारे तारीख़ी रवाबित हैं इनके साथ। और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रेस है वो भी मिक्स्ड रेस है, जिसको खशवत सिंह साहब जब तशरीफ़ लाए यहाँ 3-4 साल 5 साल बैक एड्रेस करने आए थे कैनेट कॉलेज में, तो उन्होंने कहा ये जो क्रॉस ब्लीडिंग है इस खित्ते की, उसने बड़े इंटेलिजेंट लोग और बड़े खूबसूरत लोग पैदा किए। तो हमारी तारीख़ी तौर पे जो हमारा लिंक है वो भी सेंट्रल एशिया से मुंसलिक है। तो इस वक्त चूँकि कनेक्टिविटी में इकनॉमिक एजेंडा टॉप ऑफ द एजेंडा है, तो इसी वजह से आप देख रही हैं कि जो हमारे MOUs वगैरह साइन हुए हैं
उसमें ट्रेड के बढ़ावे की बात की जा रही है। हालांकि हम दोनों ममालिक के दरमियान में कोई ख़ास ट्रेड नहीं है, 200 मिलियन डॉलर्स के करीब है, अब वो 1 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। 30 MOUs हमने साइन किए हैं और जो इकॉनमीज़ हैं जीडीपी हमारी तो 450 बिलियन डॉलर्स की है, अनऑफिशियल कोई 1 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन जो इनकी जीडीपी है कज़ाकिस्तान की वो 288 बिलियन डॉलर्स की है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस ट्रेड में कैसे बढ़ावा लाया जाता है। ठीक है नईम साहब, हम ट्रेड पर और इक्तिसादी इकनॉमिकली एस्पेक्ट से बात करेंगे, लेकिन सर ये जो बात की जा रही बार बार कि इस दौरे की सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान जो हैं वो सेंट्रल और साउथ एशिया के जियो इकनॉमिक हब तस्वुर किए जाते हैं, ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर आप? थैंक यू सर। देखिए ऐसे है कि काज़ाकिस्तान जो है ये लार्जेस्ट इकोनॉमी इन सेंट्रल एशिया है और 80 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन है इन सारे ममालिक की, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस मार्केट को, जो अनटैप मार्केट है हमारे लिए, उसको हम टैप करें और जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसकी वहाँ मार्केट करें। जैसे कि मैंने कहा कि सेंट्रल एशिया की इस गेटवे टू उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट का फुटप्रिंट जो है वो बियॉन्ड दीज ट्रेडिशनल जो मार्केट्स हम इस वक्त जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट है उससे हट के हम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब SCO कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा स्ट्रांगली इस बात पे एम्फेसिस किया था कि हमें रीजनल ट्रेड के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अब अगर आप देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन की चाइना की पॉपुलेशन है, 80 मिलियन की यहाँ की पॉपुलेशन है, इसके अलावा और पाकिस्तान के जो हमारे जो कनेक्टिविटी है इन दीज रीजन, तो ये सारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं और यहाँ तक सबसे जो करीब पोर्ट उनको जो लगती है वो पाकिस्तान की लगती है। और पाकिस्तान अगर आप देखें तो वस्ती एशिया और ये जनूबी एशिया के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है और अप टू रशिया तक हम जो है अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं और अपनी ब्लू इकॉनमी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप देखें कि इस वक्त दुनिया में अगर आप देखें तो कॉस्ट जो सबसे ज़्यादा इस वक्त बिजनेस में काउंट की जाती है तो वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। और जब आप की रीजनल और सरफेस टू सरफेस कनेक्टिविटी होती है तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत इकोनॉमिकल रेट पे बेच सकते हैं। और दूसरा ये है कि अपने जो रीजन में ट्रेड करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बर वक्त सप्लाईज भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, अब आप देखें हमारे पास आलू की फसल बहुत होती है, हमारे पास ये हमारा सिट्रस जो है ये सेंट्रल एशिया में बहुत जाता है और उन ममालिक में हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बहुत बड़ी मार्केट जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखें फर्स्ट टाइम 23 साल में इनका ये पहला दौरा है और ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ इट्स बिजनेस ओपनिंग फॉर पाकिस्तान। और हमने जो एग्रीमेंट्स उनके साथ किए हैं वो सारे आप देखें कि की सेक्टर्स हैं, एनर्जी है, पेट्रोलियम है, माइनिंग है, मैरीटाइम अफेयर्स है, ट्रांजिट ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, एजुकेशन है, साइंस एंड रिसर्च है, हेल्थ है, कल्चरल कॉर्पोरेशन है, रेलवे, लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी है। अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि ये कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हमें मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है, अभी हमारी इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है वो एक बेहतर डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि हम अभी ये नहीं कह सकते कि बहुत स्टेबल है, लेकिन वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। और जब हमारे पास अपने नेबर जब हमारे बायर्स होंगे और उनके साथ हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ेगा और उससे डेफिनेटली हमारे यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उनके मुल्कों में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और इस वक्त देखें दुनिया पूरी में अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो एक नई वर्ल्ड जो है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बन रहा है, एक नई दुनिया, एक न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो है वो जन्म ले रही है। और बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर में देखेंगे कि रीजनल कनेक्टिविटी और जो है और रीजनल बिजनेस पे बहुत तवज्जो दी जाएगी। और जब आप एक तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन की पॉपुलेशन है पाकिस्तान के सराउंडिंग में, और मैं समझता हूँ कि अगर हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसको हम मैक्सिमम उसकी यूटिलिटीज़ करें, उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं और इन मुल्कों में ख़ास तौर पे जिनके पास सी पोर्ट्स नहीं हैं और जिनको पाकिस्तान अपनी सी पोर्ट ख़ास तौर पे गवादर से बेनिफिट दे सकता है, तो आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है कि अभी देखें हमारी तकरीबन
एक्सपोर्ट जो है 46 मिलियन डॉलर की है और काज़ाकिस्तान से हमारी इंपोर्ट सिर्फ 5.7 मिलियन की है। और देखिए जो अच्छी बात है वो ये है कि काज़ाकिस्तान एक 300 बिलियन की इकोनॉमी के साथ 14,700 पर कैपिटा इनकम है, तो दे आर वेरी रिच कंट्री। और आई होप कि वहाँ पे एजुकेशन में पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो सकता है, मेडिकल एजुकेशन में फ़ायदा हो सकता है, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन में फ़ायदा हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस कॉपरेशन B2B में और चैम्बर्स टू चैम्बर्स कॉपरेशन में फ़ायदा हो सकता ठीक है। है सर, आपका पॉइंट आ गया। आरिफ साहब, यकीनन ये जो इतने अरसे बाद बल्कि पहला सरकारी दौरा है, और जो अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें कि रीजनल और फिर हम इसको वर्ल्ड जियो इकनॉमिक के हवाले से देखें तो उस तनाजुर में भी इसकी बड़ी अहमियत हासिल है। और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान काज़ाकिस्तान के जो अहदाफ हैं उनको हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। मगर मैं मुनव्वर साहब की बात से बड़ा एग्री करूंगी कि जब तक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को नहीं देखा जाएगा, उस साइड पे आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए कोई भी अहदाफ हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहेंगे सर आप? जी शादी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगा कि जो ये काज़ाकिस्तान के सदर जो मार्ट का ये जो 2 रोज़ा दौरा है, ये पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान महज सिफारती सरगर्मी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की बदलती हुई खारजा और माशी सिमत की अलामत है। पाकिस्तान अब खुद को सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं रख रहा, बल्कि वस्ती एशिया के साथ इन अमली माशी शराकत दारी की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, और काज़ाकिस्तान जैसे तवानाई से मालामाल, जैसे आपको मालूम है कि ये ऑयल और गैस के एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और ये कलीदी अहमियत का मुल्क है, और उसके साथ ताउन इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान अब जियो पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर जियो इकोनॉमिक्स पर संजीदगी से तवज्जो दे रहा है। अच्छा, ये जो 37 मुआहदे हुए जो कि MOU और एग्रीमेंट साइन हुए, इनका निचोड़ यह है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान ने अपनी दोस्ती को अब एक डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप से मुकम्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया है, जिसमें तजारत, जैसे अभी मेंशन हुआ, तजारत, ट्रांजिट, तवानाई, माइनिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेहत, माहौल और तालीम, तकरीबन मईशत और कई जो है वो सेक्टर्स को कवर किया है। इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर मुआहदे हुए हैं, और ये जो एग्रीमेंट है ये बड़े फ्रेमवर्क की सूरत में है जो काज़ाकिस्तान को वार्म वाटर पोर्ट्स तक और पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन मार्केट्स तक रसाई देते हैं। और साथ ही ये दोनों मुल्कों को नई मईशत, फूड सिक्योरिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी जोड़ते हैं। इनमें 3 जो 12 जो के एरियाज थे उनमें से 3 जो हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं। सबसे पहला तो मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट का है, फिर उसमें रेलवेज, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स हैं, क्योंकि ये बैकबोन है जिसके ज़रिए काज़ाकिस्तान का माल रेल से आकर कराची और गवादर के ज़रिए दुनिया भर की मंडियों तक पहुँचेगा। दूसरा जो बुनियादी शुबा है वो एनर्जी का है, माइनिंग और जियो साइंस है, जहां काज़ाकिस्तान की तकनीकी महारत और पाकिस्तान के कुदरती वसाइल को मिलाकर बड़े जॉइंट वेंचर्स और लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन्स बन सकती हैं। अच्छा, और तीसरा जो है वो हमारा डिजिटल AI और एजुकेशन रिसर्च का है, जिस पार्टनरशिप को सिर्फ माल बर्दारी तक नहीं बल्कि ये जो है इससे जो कि हमारी अगली नस्लें हैं, ह्यूमन कैपिटल को भी इसमें जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये जो हैं इन तमाम मुआहदों से ये पाकिस्तान को जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जो है वो मूव करता है, और ये यानी जोग्राफियाई अहमियत को माशी फ़ायदे में बदलने की एक अटेम्प्ट है। ठीक है फ़ारूक पताफी साहब, यकीनन ये दौरा इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं जितने 37 MOUs पर साइन हुए, क्या ये पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के जो दरमियान ताल्लुकात हैं उसमें गेम चेंजर्स समझा जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि 37 मुआहदे अपनी जगह पे, लेकिन उसके अलावा एक तजुर्बाती जो ताल्लुक का फ्रेमवर्क बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे पता चलता है कि दोनों ममालिक अपने रिलेशनशिप को, अपने ताल्लुकात को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं।
उसके साथ साथ अगर आप MOUs को देखें तो खासतौर से बैंकिंग और फाइनेंस, एजुकेशन, रिसर्च, जैसे पहले कहा जा रहा था डिजिटल और AI, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, माइनिंग और स्पोर्ट्स जैसे बहुत अहम सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, MOUs हुए हैं। और उससे ये साबित होता है कि अब जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ G2G नहीं बल्कि B2B भी होगी, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं बल्कि बिजनेस टू बिजनेस होगी। खासतौर से अगर आप ये देखें ये जो बैंकिंग और फाइनेंस का एग्रीमेंट है तो उससे आपको ये पता चलता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। और फिर उसके साथ एक कमेटी बना दी गई है जिसका काम ये होगा कि इंसेंटिव MOUs को देर पा लेकिन तेजी से तकमील के साइड पे लेके जाया जाए। मेरे ख्याल में इस वक्त इसके अंदर हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट नजर आ रही है। खासतौर पर आपने जो गेम चेंजर कहा उसके अंदर सबसे बड़ा गेम चेंजर तो ये कॉरिडोर है जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के दरमियान है, जो कि रेलवे लिंक और उसके साथ साथ रोड कॉरिडोर को भी क्रिएट करेगा। अगर ये हो जाता है तो उसके बाद ये जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, और आपको पता होगा कि कल उज्बेकिस्तान के भी सदर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस और अपनी दोस्तियां कायम कर ली हैं जिसका आपको इम्पैक्ट बहुत जल्दी नजर आए। ठीक है, एक और सवाल ले लीजिए पताफी साहब कि CPEC और जो वस्त एशियाई जो कॉरिडोर्स हैं उनके साथ इस ताउन को किस तरह जोड़ा जा सकता है? अच्छा, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। इसकी वजह ये है कि CPEC फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ सेंट्रल एशियन जो नेशंस हैं वो पहले से ही कनेक्टेड है। काजाकिस्तान का भी एक मुआहदा है इसके अंदर। फिर ये आप देखिएगा कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है ये SCO में हमारे साथ मेंबर कंट्रीज है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी वजह से कन्वर्जेंस आपको नजर आ रही है। काजाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की एक खूबसूरत बात यह है तो उसने किसी को भी नाराज करके नहीं रखा हुआ। वो रूस के बहुत करीब है, चीन के साथ उसके बहुत बड़ी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, अमेरिका के बहुत करीब आ गया है और इसी तरह यूरोप के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात है। तो एक ऐसे मुल्क के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको फायदा भी होता है और कनेक्टिविटी के अंदर फिर मजीद आपकी एक्सेस एक और लैंड रूट के जरिए से भी यूरोप के मंजिल तक पहुंच सकती है। तो CPEC हो, BRI हो, SCO हो, ये रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज दैट इज काजाकिस्तान एंड पाकिस्तान, ये तो मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट है जिसको हमें बाकी चैलेंज करना चाहिए। ठीक है मुनव्वर साहब, जिस तरह हमने बात की नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, अब आप ये जो जियो इकनॉमिक्स के अगर तनाजुर में हम ये जो दौरा है उसमें खित्ते की जो ताकतें हैं वो इसको किस तरह देख रही, क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, खित्ते की जो ग्लोबल साउथ की जो पावर्स हैं उनके अंदर आपको एक बहुत ही अहम हम आहंग आती है। ये पहले हम आहंगी नहीं थी। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब और ईरान का जो रेप्रोचमा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और रशिया की जो दूरियां हैं वो अब कुर्बतों में समेट रही हैं। इसी तरह से सेंट्रल एशिया, मिसाल के तौर पे कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को आप देख लीजिए, 23 सालों के बाद आने और उनको फिर निशान पाकिस्तान का जो एजाज़ देना है वो इस बात की गम्माजी करता है कि ये दौरा कितना अहम है और प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान का क्या रोल बनता है दोनों ममालिक के करीब लाने में। और फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है उसको भी कनेक्ट करना है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के साथ। तो अब ग्लोबल साउथ के अंदर कम से कम सवाए भारत को छोड़ के जिसकी आपको 3R पॉलिसीज़ नज़र आती हैं, जहाँ पे वो रिपल्सिव हैं, रिएक्टिव हैं और रिप्रेसिव हैं। बाकी जितने ममालिक हैं वो कनेक्टिविटी पे बिलीव करते हैं। इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना बात कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना बात कर रहे हैं। अब इसमें चैलेंज भी है बिकॉज जो रियलिस्ट वर्ल्ड है वो ये समझती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नॉर्मल सिचुएशन है और पीस एब नॉर्मल सिचुएशन है।
जो नई तोड़ फोड़ हो रही है उस नई तोड़ फोड़ में जो पुरानी पावर्स हैं उनको ये सूट करता है कि इस इलाके के अंदर इंस्टेबिलिटी हो। और रशियन इंटेलिजेंस तो रिपोर्ट ये भी है कि जो कुछ भारत कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर वो किसके ईमा पे कर रहा है। और बदकिस्मती से भारत को जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी वाले ममालिक के साथ ताउन करना चाहिए, न कि 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए मुल्क के साथ बहुत ही ज़्यादा पींगे बढ़ानी चाहिए। तो एक तो ये फैक्टर है। और इस फैक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा आपके पास चैलेंज है वो अफगानिस्तान है। बिकॉज अफगानिस्तान के ऊपर जो क्रेडल की स्टोरी है या जैक सलिवन की जो ईमेल थी हिलरी क्लिंटन को कि यहाँ अलकायदा कैसे पहुंची और किसका एसेट है और दाइश कैसे एयरलिफ्ट हुई और फिर 7.2 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स क्यों छोड़े गए, ये बेसिक मेरे ख्याल चैलेंज है हम हमारे ग्लोबल साउथ में और पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान में। मिसाल के तौर पर जो कनेक्टिविटी होगी वो अफगानिस्तान से गुजर के होगी, रेल रोड होगा अफगानिस्तान से होगा। अगर पाकिस्तान की सी पोर्ट को उन्होंने इस्तेमाल करना है तो इसी रूट से उन्होंने आना है, अदरवाइज दूसरा रूट तो चाबहार से होके आएगा और ज़रा कॉस्टली पड़ेगा। तो जब हम चाहते हैं कि हमारा डायरेक्ट लिंक हो तो उसमें अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है जो कि इन टाइम गवर्नमेंट है वो बुरी हुकूमत है, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। उनको ये नहीं समझ आ रही कि जो जोग्राफिकल टायरनी है वो उनको मजबूर करती है कि वो पाकिस्तान के साथ चलें, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो मजबूर करती है कि पाकिस्तान के साथ चलें। भारत ने तो 8 फिल्में तालिबान को डेमोनाइज करने के लिए बनाई जिसमें काबुल एक्सप्रेस सर फहरिस्त है। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा चैलेंज होगा। अदरवाइज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह मैंने कहा 23 सालों के बाद हो रहा है, लेकिन एक सिल्क रूट की रिवाइवल हो रही है और इसमें चाइना, रशिया और बाकी जो मिडिल रेंज पावर्स हैं वो ऑन बोर्ड होंगे। बिकॉज हमारा एक एग्रीमेंट सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सऊदी अरब के साथ है, फिर तुर्की उसमें शामिल हो रहा है, तुर्की का सोमालिया के साथ है, हमारा सूडान के साथ है। तो एक पूरा आपको एक नेटवर्क बन रहा है जो कि स्पेस क्रिएट हो रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। उसको हम किस तरह फिल करें और फिर स्टेबिलिटी को किस तरह से मेंटेन करें इस रीजन में। ठीक, नईम साहब अब ज़रा हम ये बिज़नेस फोरम में जो आज बातचीत हुई है और अहम तिजारती जो फैसले किए गए हैं और आइंदा 2 बरस में $1 अरब तक ले जाने की बात की गई है, ये प्रैक्टिकली किस हद तक मौसर साबित होंगे? ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है और ख़ास तौर पे आप देखिए जो डिजिटल इकोनॉमी है, IT है, ब्लॉकचेन है और AI है, ये सारी चीज़ें अपनी दुनिया को एक बिल्कुल नई शेप दे रही हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त 60% पॉपुलेशन जो है वो 35 ईयर से कम है और हमारी यूथ में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ कि अगले 10 सालों में गवर्नमेंट को यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आने वाला दौर टेकीज़ का दौर है और शायद उसमें डिग्रीज़ की इतनी अहमियत ना हो जितनी कि उनकी एक्सपर्टीज़ उस वर्क में है उसकी अहमियत हो। और यही इस वक्त आप देख लीजिए कि हमारे स्टार्टअप्स जो हैं या हमारे जो डेवलपर्स हैं वो अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन सेंट्रल एशिया को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़रूरत है। और इस जो बीगर इस वक्त हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है इन सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ, इसको अगर हम अपने जो हमारे कन्वेंशनल जो हमारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, तो ये 2 एरिया जो हमने निगलेक्ट किए हुए थे, और एक सेंट्रल एशिया और एक अफ्रीका, और अब मिडिल ईस्ट में भी आप देखें कि हमारी काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो जब हम इसको कंपाउंड ट्रेड की नज़र से देखेंगे तो ये 80 मिलियन की जो पॉपुलेशन है ये पाकिस्तान और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे हमारा नॉर्थ साउथ ट्रेड का कॉरिडोर जो है CPEC का, इससे पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान बहुत कनेक्टिविटी होती है। खंजराब, चाइना, सेंट्रल एशिया लिंकेज है, अफगानिस्तान ट्रांजिट कॉरिडोर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे है, और ये सारी कनेक्टिविटी आपकी ग्वादर के थ्रू भी होती है। और जब ये सारी मूवमेंट आपकी रोड टू रोड ट्रेड हो रही होती है ना, तो आप जहाँ से ये ट्रेड गुजर रही होती है वहाँ आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्री लगना शुरू होती है, कॉटेज इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाती है। और आप देखिए पाकिस्तान में
कॉटेज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और ये जब आप इसको चैनलाइज करेंगे तो आप एक कंबाइंड तौर पे बहुत अच्छी एक्सपोर्ट, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज से 50 साल पहले पाकिस्तान का कारपेट जो है, हैंडमेड कारपेट, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी मांग होती थी। इस तरह हमारा लेदर की बहुत मांग होती थी। तो दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जो हैंडमेड प्रोडक्शन से बाहर निकल रही है, लेकिन अभी भी हमारी कंट्रीज की जो प्रोडक्ट्स हैं। आपका पॉइंट आ गया सर। मैं आरिफ साहब लास्टली सर बता दीजिएगा कि हम जियो इकोनॉमिक की तो बात कर रहे हैं, मगर ये जितने भी ताउन, ये जो जितने भी मुआहदे हैं, इसमें इनको सियासत और जो हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इस पर भी ये फ्रूटफुल साबित होंगे? इसे शॉर्टली बता दीजिएगा। जी, मैं समझता हूँ कि इनका बहुत दूररस नताइज जो है वो निकलेंगे। देखिए, इससे बहुत सारी जो है, अगर ये हम इसको इफ़ेक्टिवली जो एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुए, जिसका कि बहुत इम्कान है, जिससे जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है कि दोनों ममालिक जो हैं वो बहुत इस पर तंदही से काम कर रहे हैं, और ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों ममालिक के लिए। जो सेंट्रल एशिया है उनके, और जिस तरह अब ये काज़िकिस्तान है, ये लैंड लॉक्ड है, तो उनको जो है वो एक ओशन की रसाई जो है, वार्म वाटर्स की रसाई इस मुआहदे के थ्रू हो सकती है, और पाकिस्तान को जो है वो सेंट्रल एशिया को एक्सेस मिल सकता है। ये एक विन विन सिचुएशन है। अगर जो है वो ये एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म में हमें ये एडवांटेज है कि दिस वुड चेंज द नैरेटिव। हमें जो है वो एक इकोनॉमिक पावर और एक ट्रांजिट हब के तौर पे देखा जाएगा, चूँकि हमारा जो ये ग्वादर पोर्ट से ट्रांजिट है, हम दहाने पे बैठे हैं खलीज के, और अफ्रीका और कई ममालिक से हम ये सेंट्रल एशिया को रसाई दे सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो हमें एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा इसके एग्जीक्यूशन से। एक नैरेटिव हमारे लिए बिल्ड होगा कि हम ना सिर्फ के एक अस्करी ताकत हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, और उसके अलावा हम एक इकोनॉमिक पावर की तरह से भी जाने जाएंगे। और मीडियम टर्म में ऑफ कोर्स इससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जॉब बढ़ेंगी, और लॉन्ग टर्म में ये एक नया माशी मॉडल बनेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ये हमारे लिए तो कज़ाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक बहुत अहम है, चूँकि उनके पास कोई नेचुरल राउट नहीं है टू गेट टू मेजर मैरीटाइम राउट, मगर हमारे लिए भी ये बहुत अहम है, क्योंकि इससे हमें एक नई जो है वो पोजीशन मिल जाएगी। हम जो है वो सही मानों में एक ट्रांजिट हब बन जाएंगे, और ग्वादर जो है वो इतना बड़ा हमारा एक जो पोटेंशियल है उसको हम रियलाइज़ कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को एक इक़्तिसादी ताकत में बदलने का बहुत अच्छा मौका है, और ये हमारे लिए यकीनन एक ये हमारे लिए सिर्फ एक आदादो शुमार नहीं है 37 जो ये मुआहदे हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल की ये शारक भी बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और यकीनन ये जो दौरा है, इसमें जो तिजारती मुआहदे हुए हैं, ये एक संगे मील है ख़ित्ते में जो इक़्तिसादी इस्तेहकाम है उसके लिए। मगर हमें भूलना नहीं चाहिए कि दिफा और जो सिक्योरिटी ताउन है उसके बगैर जो है ये मुआशी शराकत दारी जो है वो हासिल करना एक चैलेंज होगा, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त, बार वक्त।